Hello students, how are you? I hope you are doing well during this time. Students, right now you will see the environment of nowadays. It is too cold, okay? And you are just locked inside your home, okay? It means that you are just isolated in your home. So what is this? This is the quality time for you, and by using this quality time, you can use for the preparation of your annual examination. This is the very crucial time is going on. Okay, so with this motto, let me introduce myself. I am your computer science teacher, and I am here to give you the most important lecture on Microsoft Excel. Students, as you know that right now the revision session is going on, and in this online revision session we are having the chapter number 7, editing a worksheet, right? And one more thing I just want to tell you, this video belongs to class 6 student, and class 6 student will study here about lecture number 94. Okay, so right now what topic we are going to cover, let's have a quick look about this. So what topic is number 1, how to insert a row and column in a worksheet. Number 2, how to make copy and paste the data, and in this copy and paste the data we will also have how to move your data from one place to another in a worksheet, right? So these are the topics we are going to cover, and one more thing students, we are having a practical demonstration about the same, right? In this revision session I am going to revise, going to give you the practical demonstration for each and everything. Okay, so students, right now without wasting any time, let us start this video. And before starting this video, I just want to give you a warm welcome to all my students, my dear participants and my viewers, right? And I have a request, please don't skip any part of this video, because this revision session gives you a most important things for you, right? Don't skip anything. And finally, if you like this video, don't forget to subscribe it, don't forget to share this video to all of your friends, and one more thing, please press the bell icon, because bell icon gives you a one kind of notification for updated videos, right students? So let's start it. Students, first of all, let's have a quick question for you before starting it. As you know that you are watching the previous videos, you are having the practical demonstration in our previous videos also. Okay, so let's have a quick question. Do you know what is the use of F2 and F4 during the working of Excel sheet? Yes, when you are using the F2 function key and F4 function key. Okay, what are the difference between them? Okay, when you are using in MS Excel, right? Let me write the question for you so that you can just remind it. Question number 1. What are the uses of S2 and S2 key while working on MS Excel, while working on worksheet of MS Excel. Okay, let's come to the second question. What is the use of escape key while copying the data in a worksheet? Okay, one more question. What is the use of
cancel and enter option which are appeared in formula but while working on cell of worksheet in MS Excel. Okay, let me revise the questions one more time. First question, what are the uses of F2 key and F4 key when working on worksheet of MS Excel? Question number 2, what is the uses of escape key when copying the data in a worksheet, right? And question number 3, what is the use of cancel and enter option which are appeared in formula bar, okay, while working on cell of worksheet in MS Excel? Okay, these are some questions for you, and these are very important questions. I just want to give the answer of these questions by using your YouTube comment, right? These kinds of answers may be helpful in your annual examinations, right students? So with this motto, let's have the practical demonstration of these topics, right? In this practical demonstration, we'll cover up all the points. Okay, so students, let's come to my laptop, and in this laptop we'll cover up all the topics. Okay, please come. ओके, सो हम बात कर रहे थे जूम करके क्या होता है। ओके, सो इस समय जूम मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ मैं कि इस समय यहाँ पर ये जो बटन है कांट रीडू है, और ये बटन है हमारा है अनडू बॉर्डर्स। लास्ट एक्शन जो भी होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा ये, ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे how to insert column and row. That's a very interesting topic for you. And one more thing students, if you have any kind of doubt, any kind of problem, definitely you can just get in touch with me, okay, as early as possible, so that I can give you a reply. Okay, so and your satisfaction level is very important for you, right? और अगर आपको मेरे इस वीडियो को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो दैट्स अ मोटिवेशन फॉर यू। मेरे पास एक ये मोटिवेशन की तरह होगा, एप्रिसिएशन की तरह होगा, ताकि मैं अब अगले ही वीडियो में आपको मैं कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हाउ टू इंसर्ट अ रो और कॉलम, ठीक है। इस समय हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि जो आप तरह से आप कीबोर्ड और बिल्कुल कई डिफरेंट वे से आप कॉलम्स को और रो को इंसर्ट कर सकते हैं आप। सो अभी मैं इस समय मेथड नंबर 1 की तरफ जाने जा रहा हूँ मैं। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ बी रेडी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेथड नंबर 1 फॉर स्टार्टिंग फॉर हैविंग द न्यू रो और कॉलम। सबसे पहले हम ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, जो ऑप्शंस हमारे टूल बार में मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम जब टेबल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी हम जब टेबल इंसर्ट हो चुका है, और किसी भी रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप सबसे पहले कर्सर को प्लेस करिए कि कहाँ पर आपको अपना न्यू कॉलम आपको या न्यू रो आपको चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है, इसके लेफ़्ट या राइट में मुझे आपको चाहिए, इसके लेफ़्ट में या राइट में। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर हम अपने किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा टैब में आप जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पर रो इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे कैसे करेंगे आप, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन हमारा हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए। सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक बटन है यहाँ पर इंसर्ट। जैसे ही मैंने किया, अपने आप आपका लेफ़्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से हम रो के लिए बात करते हैं। यहाँ पर
रो के लिए क्या करना होगा, पहले आपको रो सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इंसर्ट। सो यहाँ पर देखिए इंसर्ट करने पर आपका एक नया रो आ गया यहाँ पर, और उसके बाद रो और कॉलम इंसर्ट होने के बाद हम अपने यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा इंटर कर सकते हैं हम। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका मेथड नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ अब हम आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 की तरफ, यहाँ पर मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है इस समय कि आपको होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद जाना है आपको सेल्स ग्रुप में, और सेल्स ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। पहला बटन है इंसर्ट, दूसरा बटन है डिलीट, तीसरा बटन है फॉर्मेट। सो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं हम इंसर्ट ऑप्शन को। इस पर क्लिक करने के बाद फिलहाल आपको टोटल 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से 3 एक्टिवेटेड हैं और 1 ऑप्शन आपका डीएक्टिवेटेड है। फिलहाल हमने एक रो को सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे पहले से ही, और यहाँ पर हम अगर किसी सेल को इंसर्ट करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की भी बनाया गया है, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू। और यहाँ पर इंसर्ट शीट रो के लिए यहाँ कोई शॉर्टकट की नहीं है। ओके, सो जस्ट यू हैव टू क्लिक वन मोर टाइम, जस्ट क्लिक इट। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका इमीडिएटली एक नया रो आपका इंसर्ट हो गया। कॉलम की बात करते हैं यहाँ पे क्लिक किया, फिर से हम जाएंगे सेल्स टैब में, एंड देन आफ्टर इफ यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इंसर्ट शीट कॉलम, पहले क्या ऑप्शन था इंसर्ट शीट रो, क्लिक करेंगे। ये देखिए एक आपका यहाँ पर न्यू कॉलम आपका इंसर्ट हो गया, और यहाँ पर हम अपने तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं हम। ओके, यहाँ पर हम अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आई एम हियर टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट। ओके, सो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज मैंने यहाँ पे आपके लिए कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने समझा यहाँ पर किस तरीके से रो और कॉलम को इंसर्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक शीट को इंसर्ट करते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर शीट को इंसर्ट करने के लिए दोबारा से यहीं जाएंगे हम, होम टैब, सेल्स ग्रुप, और यहाँ पे एक आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट शीट। अभी देखिए शीट 1 पे हम काम कर रहे हैं, और क्लिक करने के बाद एक नया शीट आपको मिल जाएगा। क्लिक करते हैं हम, ये देखिए शीट नंबर 4 आपको मिल गया, यानी कि शीट 1 से जस्ट पहले आपको मिला यहाँ पर। ठीक है, ये शीट नंबर 4 आपका हो गया। ओके, और ये रहा आपका एक्चुअल डेटा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेल्स को इंसर्ट कर लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर किस तरीके से कि शीट इंसर्ट हो गया, रो कॉलम हो गया, और अब आपका बारी है सेल्स की। सेल्स पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट सेल्स पे। इंसर्ट सेल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर शिफ्ट सेल राइट ले लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपका जो सेल है वहाँ पर एक सेल आपका इंसर्ट हुआ और आपका डेटा मूव हो गया, जो डेटा आपका था मूव हो गया। जैसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, अभी देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से है, तो शिफ्ट सेल डाउन मतलब डेटा को शिफ्ट कर देगा नीचे के साइड में, और वहाँ पर एक नया सेल आ जाएगा। एक बार और ट्राई करते हैं आपके लिए। यहाँ गए और शिफ्ट सेल डाउन हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए नीचे की तरफ डेटा हमारा मूव हो गया। इसी के साथ अब हम यूज़ करते हैं इंसर्ट सेल राइट का, शिफ्ट सेल यानी कि शिफ्ट सेल राइट। अब आपका जो डेटा है वो राइट साइड में मूव हो जाएगा। क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये देखिए डेटा आपका राइट साइड में मूव हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा आपने, हाउ टू इंसर्ट रो, हाउ टू इंसर्ट कॉलम, हाउ टू इंसर्ट सेल एंड हाउ टू इंसर्ट शीट। शीट इंसर्ट करने का एक और तरीका है, वो भी आप देख लीजिए प्लीज़। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बटन दिखाई दे रहा है, इसका नाम है इंसर्ट वर्कशीट। क्या नाम है इसका, इंसर्ट वर्कशीट। ये इसका एक शॉर्टकट की भी है, शिफ्ट F11, शिफ्ट प्लस F11। एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर शीट नंबर 3 के बाद आपको शीट 5 मिल गया। तो दोनों ही कमांड्स में थोड़ा अंतर है आपका शीट इंसर्ट करने में।
जो शीट पहले से सिलेक्टेड है, अगर आप उससे पहले आपको चाहिए कोई शीट, तब तो आप ऑप्शंस का यूज़ करिए जो टूल बार में दे रखा है। और अगर आपको आप इंसर्ट वर्कशीट बटन का यूज़ करेंगे तो आपको राइट साइड में वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर? अब वापस आते हैं हम शीट नंबर 1 की तरफ। शीट नंबर 1 पे अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से किसी भी सेल्स को या किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर होम टैब में और सेल्स ग्रुप में जाना होगा, और यहाँ पर आपके पास डिलीट ऑप्शंस हैं। यहाँ भी 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर डिलीट सेल, डिलीट सेल का देखिए शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस, एक बार फिर से देखिए, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस, यानी कि 2 की दबाने हैं, कंट्रोल और माइनस। डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट। अभी मान लेते हैं कि मुझे शीट नंबर 4 डिलीट करना है, तो मैंने शीट नंबर 4 को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ जाएंगे डिलीट और लास्ट ऑप्शन के लेंगे यहाँ पर हम डिलीट शीट। ठीक है, शीट नंबर 4 गायब। अगर हमें शीट नंबर 5 डिलीट करना है तो सेलेक्ट, उसके बाद डिलीट पे गए, देन डिलीट शीट, इसको लिखे। देखिए आपका 2 शीट्स यहाँ पे गायब हो गए। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेल्स को डिलीट करना है तब देखिए डिलीट सेल पे गए और यहाँ पर है डिलीट सेल अप और डिलीट सेल लेफ्ट। ठीक है, इसको डिलीट करने का तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे ओके कर देंगे तो जो सेलेक्टेड होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा और दूसरा जो सेल है उसके आसपास वो उस तरह मूव हो जाएगा। जैसे कि एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पर कुछ डेटा मैं इंसर्ट कर देता हूँ। कुछ डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया आपके समझाने के लिए। ये डेटा हमारा सिलेक्टेड है। इसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया, डिलीट सेल पे किया और मैंने शिफ्ट सेल अप पे क्लिक यूज़ करके मैंने ओके कर दिया। देखिए 7th B, यानी कि जो डेटा है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, जो सेल है वो डिलीट हो गया और जो डेटा है आपका नीचे वाला वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आपने क्या किया, शिफ्ट एक आप ऑप्शन का यूज़ किया है। दोबारा से मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, और अब हम यूज़ करेंगे इस वाले ऑप्शन को, शिफ्ट सेल लेफ्ट सेलेक्ट करते हैं, ओके करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए जो डेटा था आपका वो आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आपका शिफ्ट हो गया आपका। ओके, ये तरीका था हमारा क्या करने का, सेल्स को डिलीट करने का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंटायर शीट रो, यानी कि रो को डिलीट करना है। तो जिस रो में आप काम कर रहे हैं अगर उसको आप हटाना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे यहाँ पर, एक पूरी की पूरी यहाँ पर जो रो है हमारी गायब हो जाएगी। इसी के साथ कॉलम नंबर C पे आप काम कर रहे हैं इसके हिसाब से, तो अगर आपको कॉलम ही डिलीट करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डिलीट शीट कॉलम। देखिए पूरा का पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो गया ये। ठीक है, तो ये हमने जो टोटल प्रोसेस समझा है, हमने यहाँ पर इंसर्ट हमने क्या कर दिया है, करने का तरीका सीखा कि हाउ टू इंसर्ट अ रो एंड कॉलम एंड सेल्स एंड शीट। ओके, इसी तरह से हमने डिलीट करने का तरीका भी सीखा, कैसे सेल्स को डिलीट करना है, कैसे एक शीट को डिलीट करना है, कैसे रो को डिलीट करना है, कैसे कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, और कुछ शॉर्टकट की भी आपने यहाँ पे समझा आपने। अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर के, इस अध्याय के लास्ट टॉपिक पे। इस लास्ट टॉपिक में हमें क्या समझना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर समझना है कि कॉपी और मूव कैसे करते हैं, कॉपी और मूव कैसे करते हैं। ठीक है, कॉपी और मूव करने के लिए ये हमारे सामने डेटा है। तो सबसे पहले कॉपी करने के 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बताऊंगा आपको शॉर्टकट तरीके से, यानी कि शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट्स का, और दूसरा तरीका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस का। जैसे कि ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये, ठीक है। सिलेक्शन के बाद अब हम यहाँ पर जाएंगे होम टैब में। होम टैब में पहला ग्रुप हमारा है क्लिपबोर्ड ग्रुप। इस ग्रुप में आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, कॉपी, पेस्ट, कट, फॉर्मेट, पेंटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉपी पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, कॉपी पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कॉपी करने के बाद अब कहीं भी न्यू प्लेस पे हम जाएंगे और न्यू प्लेस पे जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक नहीं करेंगे, अभी ऑप्शंस का यूज़ कर रहे हैं हम। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पेस्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और पेस्ट करके हमारे न्यू पोजीशन में सारा कुछ पेस्ट हो गया। ये था हमारा पहला मेथड। ओके, ये हमारा हो गया पहला मेथड। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ।
ठीक है, अभी हम सारा ध्यान हम किस पे कर रहे हैं, हाउ टू कॉपी द डेटा। मूव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हाउ टू कॉपी द डेटा। जब हम कॉपी करेंगे दो अलग अलग जगहों पर सेम डेटा आपको दिखाई देगा, दो अलग अलग जगहों पर सेम डेटा आपको दिखाई देगा आपको। ओके, सो इसी के साथ अब हम आते हैं कॉपी करने के लिए दूसरा तरीके पे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आपने कॉपी कर रखा है, कॉपी करने के बाद क्लिपबोर्ड ऑन करेंगे जो कि आपका पहले से मौजूद है आपका होम टैब में ही। ये रहा आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में देखिए आपका पहले से यहाँ पर डेटा आपका दे रखा है। आप न्यू पोजीशन पे जाइए, न्यू पोजीशन पे जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करिए। आप देखिए आपका डेटा यहाँ पे, आप जितनी बार भी क्लिक करेंगे उतनी बार आपका डेटा यहाँ पेस्ट होता जाएगा। आप न्यू पोजीशन जाइए, फिर से क्लिक करिए, फिर न्यू पोजीशन जाइए, क्लिक करते जाइए, जितनी बार आप चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेथड नंबर 2 था जिसमें कि कॉपी पेस्ट आप कर रहे हैं यहाँ, और उसमें यूज़ कर रहे हैं क्लिपबोर्ड का। ओके, नाउ अब हम आते हैं शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। हम पहले इसको हटा देते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन जस्ट रिमूविंग दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, ये हमारा डेटा गायब हो चुका है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हम किस तरह से हम कॉपी पेस्ट के बाद अब हम समझते हैं मेथड नंबर 2 कि कॉपी पेस्ट का दूसरा तरीका क्या है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं कीबोर्ड या माउस की हेल्प से। सेलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी के बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, एक डॉटेड बॉर्डर आपका आ गया। न्यू लोकेशन पे आ जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है, इस तरह करके हमारे पास आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज़ करके आप डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैं कंट्रोल जेड कर दिया मैंने वापस। अच्छा, इसी के साथ जो है अब हमें जो है यहाँ पर ये समझना है कि किस तरीके से डेटा को मूव करना है। डेटा को मूव करने का मैं 2 तरीका बताऊँगा मैं। पहला ऑप्शंस का यूज़ करेंगे और दूसरा हम अब यूज़ करेंगे यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ का। पहले हम देखते हैं ऑप्शंस के लिए डेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है ये, और यहाँ प्रेस कर देते हैं हम कट ऑप्शन पे होम टैब में, और क्लिपबोर्ड ग्रुप है और यहाँ पर है हमारे पास कट ऑप्शन। इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए डॉटेड बॉर्डर आ गया। अब यहाँ पे हम किसी न्यू लोकेशन में जाएंगे और हम क्लिक करेंगे दोबारा से पेस्ट ऑप्शन पे। देखिए ये डेटा आपका यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आपका पहले जो पोजीशन था वहाँ से टेम्परेरी डेटा डिसअपीयर होगा। डिसअपीयर होने के बाद न्यू लोकेशन पे आ जाएगा। ये डेटा हमने मूव कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक आपने जो देखा ऑप्शंस का यूज़ करके किस तरह से डेटा मूव करना होता है ये आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे शॉर्टकट की से कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैंने कंट्रोल जेड कर दिया वापस अपनी पोजीशन पे जाने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले किसी डेटा को सेलेक्ट करते हैं हम। ये रहा डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन के बाद अब हम करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स। देखिए कंट्रोल एक्स करने के बाद मार्क्स इन हिंदी आपका डॉटेड बॉर्डर के फॉर्म में आ गया। न्यू लोकेशन पे जाएंगे हम। न्यू लोकेशन पे हम भरेंगे कंट्रोल वी। ये देखिए अब आपका यहाँ पर न्यू लोकेशन पर डेटा मूव हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने 2 तरीका देखा जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर अपने डेटा को मूव कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, मेथड नंबर 3। एक और मेथड है जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें आप। ओके, इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम आते हैं लास्ट मेथड की तरफ। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से राइट क्लिक करके भी हम अपने डेटा को कॉपी पेस्ट या फिर हम डेटा को मूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रहा सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। कॉपी करने के बाद न्यू लोकेशन पे गए। आफ्टर गेट गोइंग टू द न्यू लोकेशन राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट। देखिए 2 जगह डेटा आपका आ गया राइट क्लिक करके। इसी तरीके से अगर आपको डेटा मूव करना है तो ये रहा आपका सिलेक्शन एरिया। सिलेक्शन एरिया के बाद मैंने कट किया। कट करने के बाद न्यू लोकेशन पे गए और न्यू मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए तो हम राइट क्लिक करें। टोटल आपने यहाँ पर ऑप्शंस का यूज़ किया, शॉर्टकट की का यूज़ किया और राइट क्लिक का यूज़ किया कॉपी करने के लिए और मूव करने के लिए। और जो एडवांस आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दी है वो है क्लिपबोर्ड की हेल्प से भी हम डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
Okay students, so students, I hope you have enjoyed in this session, and whatever the queries you have, you can just ask me anytime. I'm always here to give you all kind of support. Okay, so right now we'll just have fun in this video. Okay, we'll meet very soon. Okay students, I hope whatever the practical demonstration I just want to deliver here, that each and everything is very much clear to you. Whatever the things I have explained here, that very much understandable by you. But students, I just want to make sure that whatever the queries you are sending to me, that I must have a responsibility to resolve at any cost. Okay, so don't hesitate to ask your questions. And every time I'm here to give you all kinds of supports. Right? You can use YouTube comment, you can use WhatsApp. Okay, various kinds of technologies are there to get in touch with me. Okay, so students, if you like this video, please subscribe it and share this video to other of your friends. Right? And one more thing, please don't forget to press the bell icon, because bell icon gives you a notification for my updated videos. Okay students, so one more thing I just want to say, that whatever the contents I have delivered to you, okay, you can have it the main theory classes as well as practical classes in the previous videos. So just you can have a look about this, okay, and whatever the comments you want to, whatever feedback you want to do, just give it to me, okay, so can I am just able to analyze it and just reply it as early as possible to you. So thanks for watching this video, and keep watching the other videos, and finally I just want to say, keep healthy and always smile. Okay, so thanks for watching this video. Thank you so much.